Hello, students. Good evening. Uh, some students came to me for the notes, and I have already shared videos and notes what I had. Some links I shared, so I think you have got material, but still I'm speaking on memo, which is very important part of your syllabus. So try to understand. I'm trying to explain it in a very lucid manner, and mixed language I'm going to use so that everyone can understand. So first of all, memo or memorandum, right? What is memorandum, or short name is memo? An inter-office memorandum, memo, is a document, right, written to pass information between people and departments within an organization, right? You didn't come to the class, we had discussed, and I told you that memo is written for for only for organization, or this is the inside document, right? So that is used for within among members of an organization. बहुत ज़रूरी है ये याद रखना. तो मेमोरेंडम एंड इंटर ऑफिस मेमोरेंडम है ना, ये इंटर ऑफिस मेमोरेंडम इज अ document written to pass information between people and departments within an organization. तो ये memorandum is written within an organization. First of all, please इसको underline करना and take care. Memos are not written for outside. For example, uh, any other letter, different kind of letters we write for emails and all for others, but this is within an organization, so which is very important part. Second thing is that suppose let me give you one example of St. Paul. In St. Paul College there are 5 departments, right? And within departments, suppose we have to convey any message, so we have official group in which we convey messages, and these kind of messages come under memorandum, memory, to memorize someone, right? Memos are extremely important for smooth running of an organization because they provide a record and history of a company's decisions, right? Memorandum is extremely important for smooth conduction, for smooth running of an organization. अगर आपको किसी भी organization, आप कल स्कूल डालते हो, आप कोई भी स्टार्टअप्स शुरू करते हो, किसी भी चीज़ को कोई organization कुछ भी शुरू करते हो, तो दैन फॉर रनिंग स्मूथ रनिंग what you have to do, you have to use memorandum. They provide a written record, है ना, and history of the company's decision. तो तभी मैंने क्लास में, आप लोग नहीं आए थे बहुत बच्चे, मैंने बताया था कि मीटिंग मिनट्स लिखते हैं हम, और वो सॉफ्ट और हार्ड कॉपी बैक ऑफिस में सबमिट होती है. क्यों? क्योंकि हमने पिछले, जैसे डायरेक्टर्स चेंज होते हैं, प्रिंसिपल चेंज होते हैं, फैकल्टी चेंज होती है, तो हमारे आने के पहले जब पहले डायरेक्टर थे या प्रिंसिपल थे या फैकल्टी है या एचओडी से, उन्होंने क्या किया. क्योंकि आप इमेजिन करो कि अगर हिस्ट्री ना हो तो हमारा बेस तो ख़त्म हो जाएगा, हम फिर से ज़ीरो पे आके खड़े हो जाएंगे. तो बेस इज़ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेमोज क्या होते हैं? वो आपको रिटन रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज डिसीजन, कि भाई पिछले बार डायरेक्टर जो थे उन्होंने ये डिसीजन लिया था, ऐसा इस तरह के डॉक्यूमेंट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन. एक तरह की सीक्रेसी है ये, और वो प्रोवाइड करते हैं, है ना. दूसरा, मेमोज also serve as a record for all background variables and alternatives which are considered, viewed and weighed before arriving at such decisions. Memos serve as a record, है ना. आपको हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन हुआ भी, या कोई भी इवेंट, छोटा इवेंट हो बड़ा, है ना, मेगा इवेंट हो,
तो क्या करते हैं, उसकी शुरुआत में मीटिंग से स्टार्ट्स विद द मीटिंग, एंड देन responsibilities, roles and responsibilities are given to different faculty members, and then time to time reminders are there, reviews are there, right, follow up are there. वो रिमाइंडर डालते हैं, रिव्यू डाल लेते हैं, फॉलो अप लेते हैं, ये सारा रिकॉर्ड में जाता है ना. सेम दे आर टेलिंग हियर, मेमोज आर ऑल्सो सर्व एज अ रिकॉर्ड, क्योंकि अगर आपने नहीं किया, आपको डेडलाइन मिली थी, आपने नहीं किया, तो सब रिकॉर्ड में है. तो मेमोज क्या आपको याद दिलाते हैं कि देखिए इस डेट में ये डेडलाइन थी, आपने काम नहीं किया, या किया जो भी, या इतना किया, हाफ है, जो भी. दीज आर कॉल्ड मेमोज. मेमोज का ये यूटिलिटी है. और ऑल द बैकग्राउंड वेरिएबल्स एंड ऑल्टरनेटिव्स विच आर कंसीडर्ड, व्यूड एंड वेट बिफोर अराइविंग एट सच डिसीजन. मान लीजिए कोई एनुअल फंक्शन का ही एग्जाम्पल अगर लूँ, लेना है, तो उस दिन फाइनल एक दिन में नहीं होता, एक मीटिंग में नहीं होता, फिर बार बार मीटिंग होती है. अच्छा, इसमें ये करना है, ये करना है, ये प्रोग्राम डिसाइड करना है इतनी देर का, ये गेस्ट बुलाना है, ये चीफ गेस्ट है. ये फाइनल डिसीजन के पहले वाले जितने करस्पॉन्डेंस और डिस्कशंस होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट जो भी भेजे जाते हैं, विच आर नोन एज मेमोरेंडम और मेमोज. मेमोज आर critical in sense that they keep a record of responsibility. ये पूरा नहीं आया है, इसको समझ लेना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये बड़े क्रिटिकल, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दे कीप अ रिकॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, यू वर सपोज टू डू दिस. कि मान लीजिए हम लोगों के यहाँ जैसे एनुअल फंक्शन होता है, तो एक बहुत सारी कमेटीज़ बनती है, तो कोई स्टेज, कोई रिफ्रेशमेंट, तो कोई प्रॉप्स, है ना, तो कोई म्यूज़िक कमेटी, तो वो म्यूज़िक वाला पूरा देखेगा, कोई रिकॉर्डिंग देखेगा, कोई पब्लिशिंग का देखेगा, कोई इनविटेशन देखेगा, कोई कल्चरल देखेगा, कोई कंपेयरिंग देखेगा. ऐसे अलग अलग होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये क्या करते हैं, मेमोज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको रिकॉर्ड, है ना, वो आपको रिकॉर्ड रहता है आपके पास पूरा, है ना. तो इसीलिए उसको मेमोज जो है वो आपकी रिकॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि भाई आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. ठीक है. अब why have you included meeting friends and shopping in the itinerary, right? Don't you know this is an official, छोड़ो इसको, अपने बाद में करेंगे इसको. अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम. मेमोज आर रिटन टू डील विद मैनी इन ऑफिस मैटर. ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, वही चीज़ है. वन मे बी expected to write a memo to do any of the following in a professional organization. क्यों लिखेगा, देखें. नंबर 1, to confirm a memo can be written to confirm the details of meeting, है ना, a conversation or a telephonic call. उसके लिए टेलीफोनिक कॉल, आपसे टेलीफोन में कोई बात हो गई, मीटिंग के डिटेल्स, मैंने मीटिंग मिनट्स बताए, ये सब के कंफर्म करने के लिए मेमो भेजा जाता है. द पर्पस बिहाइंड राइटिंग वन सच मेमो इज़ टू हैव अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ डीड्स ऑफ डिसीजंस दैट वर मेड, द पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ. आप तो उसको ऐसे याद रखो कि मीटिंग मिनट्स जो लिखे जाते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ मेमोरेंडम. मीटिंग मिनट्स इसको कहते हैं मेमोरेंडम, है ना, ऐसे याद रखो. एक एक मिनट का ब्यौरा जब लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसको मीटिंग मिनट्स कहते हैं, है ना. अब मैं यहाँ खास पढ़ती हूँ. अब ये क्या कह रहा है, मेमो क्यों लिखा जाता है ना. यहाँ फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं. ये क्यों, एक तो कंफर्म करने के लिए, है ना, मीटिंग में क्या क्या हुआ. फिर टू सजेस्ट, ये पॉइंट्स बस आप ऐसे याद रखो. फर्स्ट इज़ दैट
टू कन्फर्म, फिर टू सजेस्ट, है ना। अब सजेस्ट में क्या, वी कैन राइट अ मेमो टू रिकमेंड सॉल्यूशंस फॉर वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम्स, है ना। तो हम मेमो किसके लिए लिखते हैं, टू रेकमेंड सॉल्यूशंस फॉर, मान लो बिजनेस में 10 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सजेस्ट करने के लिए। मेमोज आर ऑल्सो रिटन टू ऑफर ऑल्टरनेटिव्स एंड इम्प्रूव्ड सर्विसेज बिसाइड्स मेकिंग डिसीजंस फॉर यूजिंग न्यू प्रोसीजर, है ना। तो मतलब सजेशन के लिए भी जो लिखे जाते हैं, मान लो आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि चलो ये प्रॉब्लम है तो ऐसा कर लेते हैं, वो भी मेमो होता है। फिर रिक्वेस्ट के लिए भी होते हैं। मेमो इज़ ऑफन रिटन टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर टेकिंग एन एक्शन लुकिंग इन टू मैटर। हमारे यहाँ खूब बड़ा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, फैकल्टी के आपस में कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो अगर उसको सुलझाना है, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिस में ऐसा होता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी रिक्वेस्ट लेटर लिखा जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेमो। By writing a memo for such routine matters, one can ensure a focused attention and speedy action, कि जल्दी आप कुछ इस पे एक्शन लीजिए। फिर एक्सप्लेन करने के लिए आप हेडिंग्स, साइड हेडिंग्स लर्न कर लेना। एक्सप्लेन करने के लिए कैसे, कि एक्सप्लेन करने के लिए कैसे कि a memo can be written to explain or define clearly what had not been understood initially. A memo thus written explains a procedure or method often considered complicated or newly introduced, है ना। तो मेमो क्या एक्सप्लेन करता है, प्रोसीजर, कि मान लो मैं नई आई हूँ, है ना, तो न्यूली इंट्रोड्यूस इन अ कॉम्प्लिकेटेड और न्यूली इंट्रोड्यूस in an organization। तो मेमो एक्सप्लेन्स अ प्रोसीजर और मेथड ऑफन कंसीडर्ड कॉम्प्लिकेटेड। मान लो कोई एक नई फैकल्टी आती है, उसको समझाने के लिए, तब भी बार बार मेमो जो है वो पूरा एक्सप्लेन करता है कि भाई आपको ऐसे से करना है, ये रूटीन है, ये लिखना। अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑटोनॉमस के, तो उसके फॉर्म उसका OMR कैसे भरना है, कितने बजे आपको जाके कॉपी कलेक्ट करना है, आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, आपको कैसे साइन करना है, ये सारी चीज़ें भी उसी में आती हैं, है ना। फिर टू अनाउंस, मेमोज आर कॉमनली रिटन टू मेक अनाउंसमेंट्स। तो जो अनाउंसमेंट्स सिस्टर अनाउंस करती हैं मॉर्निंग असेंबली में, ये भी मेमो है ना। अबाउट चेंजेस इन द कंपनीज पॉलिसीज, टाइमिंग्स ऑफ एन ऑफिस, फंक्शंस ऑफ अ डिपार्टमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट, ये सब मेमो में आता है। ये पढ़ लेना आप अच्छे से, बस यही पढ़ लो आप अच्छे से। टू रिपोर्ट, मेमोज आर ऑल्सो रिटन टू गिव एन अकाउंट of journey, to highlight the trends in sales and productions, to analyze a situation, to present an evaluation of a visit to some site, है ना। तो आप ऐसे याद रखो इसको कि रिपोर्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं हम। कहीं जाते हैं, आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाते हो, कश्मीर ट्रिप गए थे वहाँ, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो भी मेमो में आती है। फिर टू कॉशन और वॉर्न, मेमोज आर ऑल्सो रिटन टू रिमाइंड पीपल इन देयर जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अ मेमो कैन ऑल्सो caution and warn people in case they do not keep time, ignore their work, है ना। तो अगर डिले द कंप्लीशन ऑफ हम लोग को भी आते हैं ऐसे मेमो, आप टाइम पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी इग्नोर कर रहे हो, आप जल्दी जा रहे हो, आप बैठ रहे हो, कुछ भी, तो ये छोटे छोटे से ऐसे नोट्स आते हैं कई बार, विच आर ऑल्सो टाइप ऑफ मेमो। सो फॉर दीज and several other professional functions, a memo travels within an organ। बहुत सारे मेमो रोज आते हैं। इनफैक्ट नो अदर टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन रीचेज सो मैनी पीपल एज एट सो मैनी लेवल्स एज दस मेमो। मेमो रोज़ लिखे जाते हैं, कई तरह के, कई पर्पस है, तो मेमो सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंचता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो द लार्जर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा है, नंबर है वो, नंबर ऑफ मेमोज रिटन। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जितना लार्जर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज, और जितना पर्टिकुलर है, आपको पता है हमारा कॉलेज तो बहुत पर्टिकुलर है, द ग्रेटर नंबर ऑफ मेमोज, तो उतने ही ज़्यादा मेमोज, सच में बहुत सारे मेमोज आते हैं, है ना, हर तरह के आते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर है, ये मैं नहीं बताती, इससे आप ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमो इज़ द सेम एज द
मेमो रिपोर्ट, प्लीज़ रेफ़र, वो उन्होंने बताया। मेमो टू हैज़ सेम कंपोनेंट्स, कौन कौन से, देखो स्टाइल बता रहे हैं वो, है ना। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ती, आपको भी लगेगा ज़्यादा, आप सैम्पल देखो इसका। सैम्पल क्या है, ये है मैं इस तरह का, ये सबसे पहले कंपनी का है ना, तो ये इस तरह का आपको लिखना है, ठीक है। तो आप ऐसा इस तरह करें, तो नहीं चल रहा है, एक मिनट। देखो ऐसे लिखना आप इसको, है ना। ये सैंपल दिया है उन्होंने, बस आप ऐसा सैंपल याद कर लो। तो ये कंपनी का नाम है पावर साइकिल्स लिमिटेड, है ना। सोनीपत इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, इंटर ऑफिस ही रहता है ना, टू ऑल एम्प्लॉयज़, सब सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। ये रेफरेंस है, मैनेजर लिख रहा है, डेट है 2009, बहुत पुरानी, आप अभी की डालो, फिर सब्जेक्ट, ये आपको याद करना है। लेट मी रिमाइंड यू दैट द ऑफिशियल टाइमिंग्स ऑफ कंपनी आर फ्रॉम 10 to 6, राइट। एक्सेप्शंस रिजल्टिंग इन लेट अराइवल और early departure must be reported to the time office. Employees not reporting such aberrations and constantly found irregular in keeping with the office hours will be asked for written explanation. ये एक तरह की वार्निंग है एम्प्लॉयज़ के लिए जो जल्दी ऑफिस के टाइम को फॉलो नहीं करते। वो याद दिला रहे हैं कि 10 से 6 आपका ऑफिस है और कुछ लोग जल्दी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं या जल्दी जा रहे हैं, टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक मेमो दिया जाता है, एक वार्निंग दी जाती है कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट रिपोर्टिंग सच एबरेशंस एंड कॉन्स्टेंटली फाउंड इरेगुलर इन कीपिंग विद ऑफिस। तो क्या होगा, लास्ट में वो कह रहा है ऑफिस आर विल बी आस्क्ड फॉर आ रिटन एक्सप्लेनेशन। आपको कभी भी रिटन देखना पड़ेगा लिखित में कि आप लेट या जल्दी या टाइम को फॉलो क्यों नहीं करते, है ना। तो जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ के लिए लिख रहा है ऐसा। एक तो ये मेमोरेंडम हो गया। दूसरा मेमोरेंडम है वो है सैम्पल 2। यहाँ पे क्या है, कंपनी का नाम, है ना। फिर इंटर ऑफिस मेमोरेंडम किसको, टू जनरल मैनेजर, है ना। तो ये जनरल मैनेजर फ्रॉम, कौन लिख रहा है, सीनियर सेल्स ऑफिसर, है ना। क्या लिख रहा है, सब्जेक्ट है, अच्छा सॉरी, हाँ सब्जेक्ट है सेल्स फिगर्स फॉर मंथ एंडिंग दिसंबर 2019, पढ़ लो 29 जो भी। एज डिजायर्ड गिवन बिलो आर द सेल्स फिगर्स for the month of December in the last 2 years as reported by district supervisors in अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, है ना। तो ये एक तरह का फिगर क्या क्या है वहाँ का मंथ में जो आपको देना है, इस तरह का एक सैम्पल उन्होंने और दिया है। तो ये बता रहे हैं वो, ये फिगर्स बता रहे हैं अमृतसर में इतना। ये हो सकता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग ना लगे, याद ना हो, पर आपको करना है। तो ये थोड़ा बड़ा है इस तरह का मेमो, ये इस तरह से लिखते हैं मेमो। तो मुझे लगता है बेसिक आइडिया तो आपको हो ही जाएगा इसमें से। इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे आप, बस आप क्या पढ़ो मैं बता देती हूँ फिर से। आप इसमें से ये इंट्रोडक्शन पढ़ लो, यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, है ना। और उसके बाद आप ये पॉइंट्स पढ़ लो। क्या पॉइंट्स है, यहाँ से ये सब मेमोज आर रिटन, तो ये पॉइंट्स ये सारे पढ़ लो, बस इतना, दैट्स इनफ, ओके। तो अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।